Hello everyone, this is Aman Soni and welcome back to M12. Okay, so in today's video we are going to cover the normalization and the standardization techniques. Well, these techniques are nothing much more than the feature scaling methods. Okay, so now you are going to ask me what is feature scaling, right? Okay, so in today's video we are going to cover XYZ of the feature scaling, and I'll also let you know कि कौन सी टेक्निक हमको कौन से सिनेरियो में यूज करनी चाहिए. ओके, सो गेट द बेस्ट एक्यूरेसी ऑफ आर मॉडल. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इन हिंदी as well as in English as well to get the deep understanding of every concept. Okay, so our data have a lots of features, right? And these features are further classified into the dependent and the independent features, right? So the data is classified into a lot of features, and then those features are further classified into the dependent and the independent features, right? And after that, there are two properties of a feature. Like, what are those? Let's suppose we have a column age. ठीक है, एज के अंदर हमारी वैल्यू है 10 years. Okay, so there will be two things associated to it. 10 will be the magnitude and the year will be our unit. Okay, so there are two important properties in a feature. First one is the unit and the second one is the magnitude. Okay, so every feature have some different units and magnitudes associated to it. Okay, तो हम फीचर स्केलिंग के ऊपर डायरेक्टली जंप करते हैं. ओके, तो हमारे पास एक CSV फाइल है और उसका हमारे पास सब पार्ट गिवन है. ओके, सो वी हैव गिवन एज एंड द सैलरी. ओके, सो वी नो एज की जो हमारी रेंज रहेगी वो रहेगी 1 से 100, राइट? बट सैलरी की रेंज वी कांट डिफाइन दैट, राइट? किसी की सैलरी 100 रुपये भी हो सकती है, देन 100 रुपये से XYZ करोड़, राइट? तो इसकी रेंज और इसकी रेंज के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क है, राइट? तो लेट्स सपोज दिस इज अ फीचर 1 एंड दिस इज द फीचर 2. बट जब हम ये डाटा हमारे ट्रेनिंग मॉडल में देंगे, डोंट यू थिंक हमारा ट्रेनिंग मॉडल इस वाली कॉलम को ज़्यादा अहमियत देगा? लाइक इट विल थिंक लाइक दिस फीचर इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस वन, राइट? इन दिस पर्टिकुलर रो ये इसको ओवर पावर कर रहा है, राइट? तो लेकिन हमको एज भी एज अ फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड सैलरी भी एज अ फीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो अब इसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? सो इसका सॉल्यूशन यही है, वी हैव अ डाटा. ओके, देन वी कैन स्केल इट डाउन. व्हाट इज स्केलिंग डाउन? आई लेट यू नो. स्केल डाउन के हमारे टू फीचर मेथड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज द स्टैंडर्डाइजेशन एंड सेकंड वन इज द नॉर्मलाइजेशन. वेल, स्टैंडर्डाइजेशन is a special method of normalization, by the way. It's nothing but the normalization of a special kind. Okay, तो स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन के अंदर क्या होता है? ठीक है, नॉर्मलाइजेशन इज नथिंग बट converting all the feature value into 0 or 1. Sorry, 0 to 1, राइट? हमारी सारी की सारी वैल्यूज जो भी हमारी लाइक यहाँ पे वैल्यूज हैं, इसको हम अगर 0 से 1 के अंदर कन्वर्ट कर लें और इस वैल्यूज को भी हम अगर 0 से 1 के अंदर कन्वर्ट कर लें, तो डोंट यू थिंक कि हमारी ये वाली प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी जो फीचर 1 और फीचर 2 में अराइज हो रही थी, राइट? तो normalization is nothing but converting the values from the range of 0 to 1. And what is standardization? Standardization is nothing but
when we convert our values of a column in such a way that its mean gets 0 and the standard deviation gets 1, that's standardization. Okay, आगे समझते हैं. What is normalization? Normalization help us to scale down the features from 0 to 1. Okay, so this is the formula for that. Like normalization for a value of a particular term. Let's suppose this is the particular term. Okay, हमारा कोई भी वैल्यू मानते हैं. Okay, 0, 0, 1 and 1. Let's suppose ये हमारी एक कॉलम है. ओके, सो एक्स में अगर हम जीरो पुट करते हैं, जीरो माइनस एक्स मीन इज व्हाट, जीरो, जीरो माइनस जीरो इज जीरो. ओके, एक्स मैक्स माइनस एक्स मीन, एक्स मैक्स, व्हाट इज एक्स मैक्स, दिस इज द एक्स मैक्स, एंड व्हाट इज एक्स मीन. Okay, so what is this? It will become zero, it will stay zero. Okay, अगर हम इसमें कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, इस फॉर्मूले को हम अच्छे से देखते हैं. लाइक आपको ये चीज पता है, मैक्सिमम माइनस जो मिनिमम हमारा आएगा वो ऑब्वियस सी बात है हमारी इस वैल्यू से तो ज्यादा ही आएगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये वाली वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में लाई करेगी, एंड दिस इज मैक्सिमम. तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज गोइंग टू बी हायर एंड दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी द लोअर वन. राइट, ये जीरो हो सकती है अगर यहाँ पे हमारी वैल्यू जीरो आ रही है, ये वन हो सकती है अगर ये हमारी टर्म पर्टिकुलर इट इज एक्स मैक्स, अगर एक्स मैक्स माइनस एक्स मीन और एक्स मैक्स माइनस एक्स मीन, तो ये हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वन हो जाएगा. तो मैक्सिमम वैल्यू कैन बी वन एंड द मिनिमम वैल्यू कैन बी जीरो. राइट, तो इससे हमारे स्केल डाउन होके फीचर्स कहाँ पे रह जाएंगे, जीरो टू वन के बीच में. ओके, सो दिस इज नॉर्मलाइजेशन. Every data set don't require the normalization. It is required only when the features have different ranges. ये हमने अभी अभी देखा. Let's suppose हमारे पास कोई फीचर है जिसके अंदर यूनिट को हम कंसिडर नहीं करते, हम मैग्नीट्यूड को कंसिडर करते हैं. मैग्नीट्यूड के अंदर अगर उसकी रेंज लेट्स सपोज 0 to 100 या फिर 1000 है, और इस कॉलम के अंदर भी हमारी रेंज 0 से 1000 तक है. ओके, सो इस केस के अंदर वी डोंट नीड टू नॉर्मलाइज दिस डाटा सेट. ओके, बिकॉज ये पहले ही सिमिलर रेंज में है, इसके अंदर वो वाली प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होगी जिसके अंदर एक फीचर को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है दूसरे फीचर के मुकाबले. राइट, आफ्टर दैट एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट गिवन यू एन एग्जाम्पल. ओके, सो व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? ये हमारा हो गया. सो इट इज नॉट typed correctly. It's not normalization, this is standardization. We have seen normalization is nothing but the feature scaling technique. And standardization is also nothing but the feature scaling technique as well. Okay, all the features will be transferred in such a way that it will have the property of a standard normal distribution with the mean 0 and the standard deviation is equals to 1. Okay, सो इसको इसके फॉर्मूले से ही हम समझते हैं. राइट, एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन हेल्प ऑफ एग्जांपल. लेट सपोज देयर आर टू फीचर्स C1 एंड C2. राइट, C1 को कंसिडर करते हैं हम. C1 को हमने इस टर्म में कंसिडर करना है लाइक द स्टैंडर्ड डेविएशन पूरे की पूरी फीचर का स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 1 आना चाहिए एंड द मीन शुड बी 0. राइट, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहली रो पे चलते हैं, 0. राइट, z इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 0 माइनस व्हाट इज द मीन ऑफ दिस डाटा, 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 4, तो दैट्स 0.5. राइट, देन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका वेरिएंस हमारा आ रहा है 0.25. ओके, सो व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन? इट्स गोइंग टू बी 0.5. राइट, सो 0.5. What will z become? 5 by 0.5, that is going to be 1. Right? Okay. Then after that, ऐसे ही हम z की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी रो कन्वर्ट हो जाएगी इसमें -1, -1, 1 एंड 1. ओके, तो अब हम इसका मीन कैलकुलेट करते हैं.
मीन कैलकुलेट करेंगे तो -1 +1 सब जीरो हो जाएगा, राइट। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, राइट। तो वी हैव सक्सेसफुली कन्वर्टेड आवर फीचर इनटू सच अ वे लाइक इट इज स्टैंडर्डाइज्ड, राइट। इसका मीन हमारा 0 आ रहा है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 1 आ रहा है। नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेज कि वी हैव सीन द नॉर्मलाइजेशन, राइट, वी हैव सीन द स्टैंडर्डाइजेशन, बट हमको यूज कहाँ पे कौन सी करनी चाहिए? ओके, सो ये एक सबका इंडिविजुअल पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके अंदर फॉर द algorithms like the regression, the linear regression, the logistic regression, and the KNN, K-means, okay, and the gradient descent, or yeah, lots and lots of algorithms which involve the gradient descent as a uh, hyperparameter tuning algorithm. उस सब के अंदर इट्स बेटर टू यूज द स्टैंडर्डाइजेशन, उसकी एक्यूरेसी नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादा अच्छी आती है, एज एन जितना मैंने अभी तक इनकाउंटर किया। ओके, बट व्हेन टॉकिंग अबाउट द नॉर्मलाइजेशन, ऑल द डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स लाइक सीएनएन के अंदर हमको इमेजेस की फॉर्म में डेटा चाहिए होता है। तो इमेजेस की फॉर्म में जब डेटा होता है हमारे पास, तो वी ऑल नो कि 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के उसमें अगर हमारे पास डेटा है तो इट्स वेल एंड गुड, राइट। तो जो भी हमारी डीप लर्निंग एल्गोरिथम होती है, decision trees and the random forest, or uh, XGBoost, and all the bagging and boosting algorithms. So it is good to use normalization when you are dealing with the images and the deep learning algorithms and the decision tree, random forest, XGBoost, and all the bagging and boosting algorithms. But when you are using the regression, classification, KNN, K-means, the gradient descent, then it is better to use the standardization. Okay, so this was all about the today's lecture, and we have learned the use of normalization and standardization techniques. Okay, so see you in the next video. Thank you. Happy learning. Okay, bye bye.